નમસ્કાર દર્શક મિત્રો, ઝીરો આર કાર્યક્રમમાં આપ સૌનું સ્વાગત છે. આપની સાથે હું છું શિવમ. ઝીરો આર કાર્યક્રમમાં દર્શક મિત્રો, આજે આપણે વાત કરીશું લોકસભા ચૂંટણી 2024, જેની તૈયારીઓ આપણે વાત કરીએ તો તમામ પાર્ટીઓ દ્વારા શરૂ થઈ ચૂકી છે. હવે વાત કરીએ તો 2024ની ચૂંટણીમાં ભાજપની સામે સમગ્ર વિપક્ષ છે તે એક થવા જઈ રહ્યો છે. જે આપણે વાત કરીએ તો ગઈકાલે એક બેઠકનું આયોજન પટના ખાતે કરવામાં આવ્યું, પરંતુ જે બેઠકનું આયોજન કરવામાં આવ્યું તેમાં અનેકો મુદ્દાઓ પર જે તમામ લોકોએ જે સહમતિ દર્શાવી કે આ તમામ મુદ્દાઓ એવા છે કે જેના પર વિપક્ષે એક થવું જોઈએ. પરંતુ જે બેઠક સર્જાઈ, બેઠકમાં જે તમામ બાબતો થઈ, તમામ બાબતોની ચર્ચાઓ થઈ, પરંતુ બેઠક બાદ જે પ્રકારે આપણે વાત કરીએ તો સંયુક્ત પ્રેસ કોન્ફરન્સનું આયોજન કરવામાં આવતું હોય છે. આમાં પણ આયોજન કરવામાં આવ્યું કે કઈ કઈ બાબતો પર ચર્ચાઓ થઈ, પરંતુ આ બેઠકમાં અરવિંદ કેજરીવાલ કે જે જોવા ન મળ્યા. અને અરવિંદ કેજરીવાલ કે જે આપણે વાત કરીએ તો દિલ્હીનું જે વટહુકમ છે તેના મામલે કોંગ્રેસનું સમર્થન માંગી રહ્યા છે. કેન્દ્રનો વટહુકમ છે દિલ્હી સરકારને લઈને, પરંતુ તેમાં કોંગ્રેસે ક્યાંક ને ક્યાંક હજી સુધી પોતાનું સ્ટેન્ડ નથી રાખ્યું. અને તેને જ કારણે કેજરીવાલ કહી રહ્યા છે કે કોંગ્રેસ પહેલાં પોતાનું સ્ટેન્ડ છે તે આ જે અધ્યાદેશ આવ્યો છે, જે વટહુકમ આવ્યો છે, તેના મામલે પોતાનું જે સ્ટેન્ડ છે તે રજૂ કરે. તો વિપક્ષની એકજૂટતા છે તે 2024 આવતા પહેલાં અકબંધ આપણે કહીએ કે રહેશે કે કેમ. અને આ સિવાય ગઠબંધન પહેલાં જ વિપક્ષની એકતામાં જે પ્રકારે તિરાડ જોવા મળશે કે કેમ. સામે પક્ષે ભાજપની વાત કરીએ તો ભાજપ પણ આ જ પ્રકારે આક્ષેપ આ વિપક્ષની બેઠકો પર કરી ચૂક્યું છે. ભાજપે પણ પોતાની વાત જણાવી છે કે આવનારા દિવસોમાં વિપક્ષી જે એકતા છે તે ક્યાંય જોવા નહીં મળે. અત્યારે માત્ર બેઠકોનો દોર થાય છે, પરંતુ જે પ્રકારના અન્ય સમીકરણો હોય છે તેમાં ક્યાંય એકતા છે તે જોવા નહીં મળે. ત્યારે આ જ તમામ મુદ્દા પર ચર્ચા કરીશું કે 2024 આવતા આ વિપક્ષ જે અત્યારે એકજૂટ થયું છે, 2024 આવતા શું સ્થિતિ, આ જે ગઠબંધન જે આપણે કહીએ કે જે પ્રકારે એકજૂટ થયા છે વિપક્ષ, તેમાં કેવી પ્રકારનું સર્જાશે, શું સ્થિતિ રહેશે, ત્યાં સુધી કેવી સ્થિતિઓ છે તે સર્જાશે, પ્રશ્નો, કારણ કે તેના બાદમાં ઘણા બધા ઉદ્ભવતા હોય છે ઉમેદવારોને લઈને તમામ બધા. આ તમામ બાબત પર ચર્ચા કરીશું. ચર્ચા સાથે મહેમાન જોડાઈ ગયા છે દિલીપ ગોહિલ, આ સિવાય ડૉક્ટર અજય તિવારી અને ચેતન ત્રિપાઠી, ત્રણેય રાજકીય વિશ્લેષક છે. ત્રણેયનું સ્વાગત છે નિર્માણ ન્યૂઝમાં. અને દિલીપભાઈ આપનાથી શરૂઆત કરીએ. આપણે જે પ્રકારે આપણે વાત કરી, ગઈકાલે બેઠકનું આયોજન થયું, અનેક મુદ્દાઓ પર ચર્ચા થઈ, જેમાં ઈડી સીબીઆઈનો દુરુપયોગની વાત કરી, આ સિવાય અન્ય મૂલ્યો કે જે ભારતીય જનતા પાર્ટી હળી રહી છે, લોકતંત્ર પર સવાલ, આ તમામ મુદ્દાઓને લઈને વિપક્ષ એકજૂટ તો થયું, પરંતુ કેજરીવાલ હજી પણ જે પ્રકારે આપણે વાત કરીએ તો કોંગ્રેસનું સ્ટેન્ડ લેવા માટે બેતાબ છે કે કોંગ્રેસ સ્ટેન્ડ હજુ તેમનું બતાવે કે જે અધ્યાદેશના વિરુદ્ધમાં કોંગ્રેસનું શું સ્ટેન્ડ છે. પરંતુ 2024 આવતા આપણે વાત કરી, શરૂઆતમાં જ આ સ્થિતિ છે. 2024 આવતા શું સ્થિતિ સર્જાશે આ વિપક્ષ જ્યારે એકજૂટ થયું છે? આપનું શું મંતવ્ય છે? ભારતીય રાજકારણમાં કેટલાક સવાલોના જવાબ અઘરા હોય છે. પરિણામ આવે ત્યારે ખબર પડતી હોય છે, અને એની મજા પણ છે. અનિશ્ચિતતા હોય રાજકારણમાં, કોણ જીતશે કોણ હારશે, તો જ એની મજા પણ છે. એટલે એક લાઈનમાં જવાબ આપવો મુશ્કેલ છે કે એ વિપક્ષી એકતા છેક સુધી ટકી રહેશે. અને આજે બે પક્ષો વચ્ચે નાના મોટા મુદ્દા ઉભા થયા છે. આગળ જતા બાકીના પક્ષો વચ્ચે પણ એવા મુદ્દા ઉભા થઈ શકે છે, એની આપણે ના ન પાડી શકીએ. પણ એક વાત સમજવાની જરૂર છે કે 15 જેટલા જે પક્ષો ભેગા થયા છે એમાં એનો એકમાત્ર ઉદ્દેશ અત્યારે એ છે કે ભાજપ વિરુદ્ધ એક મોરચો ઉભો કરવો પડે, કારણ કે એમના માટે અસ્તિત્વનો સવાલ ઉભો થયો છે. મોટા ભાગના પ્રાદેશિક પક્ષોને, નાના પક્ષોને એ સમજાઈ ગયું છે કે જો વધુ એકવાર ભારતીય જનતા પક્ષની સરકાર કેન્દ્રમાં આવે, ત્રીજી વાર કેન્દ્રમાં જીતે, તો એ પછી વિપક્ષ માટે સ્થિતિ બહુ મુશ્કેલ છે. અત્યારે ઓલરેડી મુશ્કેલ છે સ્થિતિ, એ પછીની સ્થિતિ વધારે મુશ્કેલ છે. એટલે ઘણીવાર અસ્તિત્વનો જ્યારે સવાલ આવે, ભય અને લાલચ, આ બે બાબતોથી મનુષ્ય પ્રવૃત્ત થતો હોય છે. એ જ બાબત રાજકીય પક્ષોને પણ લાગુ પડે છે. એટલે આ વખતનો જે થ્રેટ છે એ થ્રેટ મોટો છે, કારણ કે કટોકટી વખતે ઇન્દિરા ગાંધીએ કટોકટી લગાડી એ પહેલા બાકીના પક્ષો આટલા મજબૂત હતા નહીં, મજબૂત થઈ રહ્યા હતા. કોંગ્રેસ ઓલરેડી મજબૂત હતી, ડિક્લાઇનિંગ ઉપર હતી, અને ઇન્દિરા ગાંધીની જે લડાઈ હતી એ પોતાના જ પક્ષમાં હતી, પોતાના પક્ષના જ જે જામી ગયેલા નેતાઓ હતા એના વિરુદ્ધની હતી. પરંતુ પછી એમણે કટોકટી લગાડી અને લોકશાહી સામે એક બહુ મોટો પડકાર ઉભો થયો, ત્યારે બાકીના બધા પક્ષોએ ભેગા થવું પડ્યું હતું અને થયા હતા. એટલે સંજોગો આ વખતે એવા છે કે સંજોગોને કારણે પોતાનું અસ્તિત્વ બચાવવા માટે વિપક્ષોને એક થવું જરૂરી છે એવું લાગ્યું છે.
લાગવું એક બાબત છે, એ વાસ્તવિકતા એક બાબત છે, પણ ખરેખર એવું થશે કે કેમ એના માટે થોડો સમય રાહ જોવી પડશે. પક્ષોના વલણ વિશે શંકાઓ રહેવાની છે. દાખલા તરીકે માયાવતીને આમંત્રણ પણ માયાવતી આવ્યાનું ત્યારે માયાવતીનું બહુ સ્પષ્ટ થઈ ગયું છે કે એમને ઈડી અને સીબીઆઈ કે આઈટી કે બાકીની એજન્સીઓ આવે એ પહેલા સરેન્ડર કરે. એમણે ભારતીય જનતા પક્ષને જે કંઈ ફાયદો થઈ શકે અને જે કંઈ સૂચના આવે એ પ્રમાણે કામ કરવાનું લગભગ ઘણા સમયથી નક્કી કરી લીધું છે. એની કોઈ સમસ્યા રહી નથી અને હાજર રહ્યા નથી. પરંતુ આમ આદમી પાર્ટી શું કરશે એ સવાલ ઉભો થયો છે. એટલે એ મિટિંગમાં હાજર હતા એમના પ્રતિનિધિઓ, ભગવંત માન અને અરવિંદ કેજરીવાલ બંને ગયા હતા, ચર્ચામાં ભાગ લીધો હતો. પ્રેસ કોન્ફરન્સ કરવાની વાત આવી ત્યારે એ નીકળી ગયા, પણ બાકીના કોઈ નીકળ્યા નહોતા. અને બાકીના પક્ષોનું જે કેવું હતું, અને એ બહુ વ્યાજબી વાત હતી કે આજે મેળાવડો હતો એ ભારતીય જનતા પક્ષ સામે એક મંચ ઉભો કરવા માટે છે. એક લક્ષ્ય કે 2024ની ચૂંટણી ભારતીય જનતા પક્ષ સામે એક થઈને લડવું, બાકીના મુદ્દાનું શું કરવું એ માટે આપણે શિમલામાં મળીશું. તો મને લાગે છે જો આમ આદમી પાર્ટીને પણ રસ હોય વિપક્ષી એકતામાં, અથવા તો આમ આદમી પાર્ટીને એવું લાગે છે કે દિલ્હીની સરકારને લગભગ બિન અસરકારક કરી નાખવામાં આવશે અને પંજાબ અને દિલ્હીમાં જે સફળતા મળી છે સફળતા સામે ભાજપ સાવધાન થઈ ગયો છે, એટલે સૌથી વધારે ભીંસ આમ આદમી પાર્ટીના નેતાઓ પર પણ અત્યારે છે. તો હવે એને બીજેપીની સામેનો જે આ પડકાર છે એની સામે લડવું છે કે પછી પોતાના એક રાજ્ય પૂરતી ચિંતા કરવાની છે. એટલે બે પક્ષોનો સવાલ હતો, કોંગ્રેસ અને આમ આદમી પાર્ટીનો. એ આ મંચ પર ન લાવ્યા હોત તો સારું હતું એવું બધાનો મત છે. એટલે એ અને એવું બીજું ચાલ્યા કરશે. અત્યારનો એક લાઈનનો એજન્ડા વિપક્ષનો હતો, તો મને લાગે છે એક લાઈનમાં આપણે જવાબ આપી શકીએ કે 2024માં એક મંચ ઉભો કરવાની કોશિશ. સવાલો ઘણા છે, શિમલામાં એક બેઠક મળશે ને પછી બેઠકો મળશે, એટલે જે સવાલો છે એના જવાબો મળશે તો સ્થિતિ સ્પષ્ટ થશે. इस प्रकार से अभी एक बैठक हुई है, अगली शिमला में होने वाली है। क्या सोचते हैं आप, क्योंकि आम आदमी पार्टी ने अभी सवाल खड़े किए कांग्रेस के ऊपर, कांग्रेस अपना स्टैंड क्लियर करे, क्या लगता है आगे आगे जितनी बैठक होगी उसमें और मामले सामने आएंगे और प्रश्नार्थ चिन्ह सामने आएंगे इसमें, और जितनी बैठकें होंगी उसमें आपको क्या लगता है 2024 आते आते क्या होगा? देखिए, मैं जितना इस विपक्षी एकता की जो बैठक पटना में हुई और उसके बाद जिस तरीके के बयान नेताओं के द्वारा आ रहे हैं, मैं दीपांकर भट्टाचार्य का भी बयान सुन रहा था, सीपीआईएमएल के महासचिव हैं, इसके अलावा जदयू और लालू यादव जी, नीतीश कुमार जी, सबके बयान सुन ही रहा हूँ। और जिस तरीके के फोटोग्राफ्स भी बाहर आए, तो एक बात जो समझ आई है वो ये है कि अरविंद केजरीवाल इस विपक्षी एकता में अलग थलग पड़ गए हैं। देखिए, जब अरविंद केजरीवाल ने बात की तो सबसे पहले उनसे उमर अब्दुल्ला ने पूछा कि जब 370 हटाई गई तब आप क्या कर रहे थे, ठीक है, आप क्यों नहीं बोले। ठीक है, ममता बनर्जी जी ने भी उनसे कुछ तीखे सवाल पूछे जिस तरीके से बाहर आती है। मल्लिकार्जुन खड़गे तो कह ही रहे। और देखिए, एक स्वाभाविक सी बात है, जिस पार्टी का प्रादुर्भाव कांग्रेस के विरोध से हुआ है, अगर कांग्रेस आज उनके साथ कोई गठबंधन कर भी लेती है तो ये लॉन्ग टर्म के लिए कांग्रेस के लिए अच्छा नहीं है। ऐसी भूल कांग्रेस उत्तर प्रदेश में बार बार करके इस स्थिति में आ चुकी है कि कांग्रेस का वहां पे 2 विधायक हैं, ठीक है, एक सांसद है सोनिया जी, ठीक है, उत्तर प्रदेश में। तो मुझे लगता है कि अरविंद केजरीवाल के साथ तो कांग्रेस को गठबंधन करना भी नहीं चाहिए। मैं इस बात को बहुत क्लियरली बता रहा हूं आपको। अगर कांग्रेस ये करती तो उसकी नीतिगत भूल होगी, और अभी तक वो कर भी नहीं रही है जो मुझे दिख रहा है। अब दूसरी बात आती है कि बाकी दलों के साथ, तो ये बहुत ही, इस बार मैं ये देख रहा हूँ कि बहुत ही तरीके से चीजें हो रही हैं। कुछ जगहों पे जो बातें फंसी हुई है, जैसे बंगाल में कांग्रेस लेफ्ट के साथ जाएगी या ममता जी के साथ जाएगी, ये एक बड़ा प्रश्न उठता है, क्योंकि दोनों के ही नेता वहां पे उपस्थित थे। ममता जी की बड़ी अच्छी सी फोटो आई है राहुल के साथ, सीताराम येचुरी के उनके अच्छे संबंध नहीं है कांग्रेस के साथ, तो वहां पे कांग्रेस किसके साथ जाएगी ये कांग्रेस को चुनना होगा। और अखिलेश यादव को, कि लगातार उत्तर प्रदेश को लेकर संशय बना हुआ था कि अखिलेश यादव लगातार कह रहे थे कि हम चुनाव अकेले लड़ेंगे। अखिलेश के कई ऐसे बयान आ चुके थे, तो अब मुझे लग रहा है कि अखिलेश यादव कहीं ना कहीं दबाव में है नीतीश और लालू के, और वो कहीं ना कहीं गठबंधन के लिए तैयार हो गए। और इसका फायदा भी मिलेगा अगर सभी लोकसभा सीटों पर एक एक कैंडिडेट आता है, भाजपा बनाम ऑल होता है तब। अगर ऐसा नहीं होता है तो फिर ये गठबंधन, इस तरीके की कोशिश का कोई मुझे बहुत ज्यादा फायदा होता नहीं दिख रहा है। दूसरी बात यह है कि जो अरविंद केजरीवाल जो अपने लगातार अध्यादेश की बात की, उसके खिलाफ आइए, खिलाफ आइए, कांग्रेस के पास उस अध्यादेश के खिलाफ कांग्रेस वैसे भी जाएगी, क्योंकि कांग्रेस
नीतिगत रूप से एक बात समझिए कि ना वो सदन में उस अध्यादेश के पक्ष में खड़ी हो सकती है, क्योंकि उस अध्यादेश के पक्ष में खड़े होने पर एक मैसेज आता है कि कांग्रेस भाजपा के साथ खड़ी है। तो कांग्रेस उस अध्यादेश के पक्ष में भी नहीं होगी और कांग्रेस सदन से वॉकआउट भी नहीं करेगी, तो कहीं ना कहीं वो अध्यादेश का तो विरोध करेगी। लेकिन कांग्रेस भी नहीं चाहती कि वो अरविंद केजरीवाल के साथ कोई गठबंधन करे, क्योंकि 2019 में भी अरविंद केजरीवाल खुद गए थे कांग्रेस के पास कुछ अपना फार्मूला लेकर के कि 3 सीट पे आप लड़ लीजिए, 4 पे आप लड़ लीजिए, कोई ऐसा फार्मूला लेकर गए थे। ठीक है, तो कांग्रेस को नहीं करना चाहिए। उस क्यों नहीं करना चाहिए उसका भी आप कारण समझिए। अभी 10 दिन पहले, 7 दिन पहले अरविंद केजरीवाल राजस्थान गए थे, कांग्रेस की सरकार पे बड़े सवाल उन्होंने उठाए। तो अरविंद केजरीवाल बहुत महीन खेल खेलते हैं। बहुत पॉलिटिक्स में जो एक चीज होती है ना कि वो जो कहीं का भी नहीं है, बहुत बड़े फ्लिप करते रहते हैं वो, कभी कुछ करेंगे कभी कुछ करेंगे और सिर्फ अपने हित साधते हैं। जब आप बड़े परिदृश्य में कोई काम करते हैं ना तो सिर्फ अपने हित नहीं साधे जाते। तो अरविंद केजरीवाल जी की को ये अब इस बार, और जिस तरीके से विपक्ष के नेताओं ने उनको लगभग किनारे लगा दिया, दीपंकर भट्टाचार्य का भी बयान है, नीतीश कुमार का भी बयान है, तो कहीं ना कहीं मामला फंस गया है इस बार। अरविंद केजरीवाल इस गठबंधन की में नहीं होंगे। लेकिन ऐसा नहीं कि सिर्फ अरविंद केजरीवाल इस गठबंधन में नहीं होंगे, बहुत सारी और पार्टियां जिनके अपने अपने प्रदेशों में बड़ा जबरदस्त वर्चस्व है। वाईएसआर रेड्डी, वाईएसआर कांग्रेस जो है, जो जगनमोहन रेड्डी की है, वो भी कहीं नहीं है। नवीन पटनायक जी कहीं नहीं है। तो ऐसा नहीं है कि सारे के सारे विपक्ष को एक कर ले रहे हैं लालू, नीतीश और मल्लिकार्जुन खड़गे मिलके। ये जो अब आप समझिए, नवीन पटनायक को क्या कोई राष्ट्रीय राजनीति में इग्नोर कर सकता है? नहीं कर सकता। वो एक राज्य में मजबूत जनाधार के नेता है। ठीक है, क्या वाईएसआर रेड्डी की पार्टी, वाईएसआर कांग्रेस को कोई इग्नोर कर सकता है? जगनमोहन रेड्डी को इग्नोर कर सकता है? नहीं कर सकता है। तो एक तरफ जहां ये गठबंधन लामबंद हो रहा है, जहां एक मोर्चा बन रहा है, वहीं एक कहीं ना कहीं स्वाभाविक रूप से ये जो अन्य दल हैं, जो भले ही भाजपा के साथ चुनाव नहीं लड़ते हैं, लेकिन इनकी भाजपा के साथ बहुत निकटतम स्थितियां हैं, चाहे वो नवीन पटनायक हो, चाहे जगनमोहन रेड्डी हो। ठीक है, तो ऐसा नहीं होगा कि भाजपा बिल्कुल अलग थलग पड़ जाएगी, भाजपा बना मॉल होगा। जब मैं तो आज की भी बात कर रहा हूँ, चुनाव के बाद की भी बात कर रहा हूँ, कि ऐसा कहीं नहीं होने जा रहा कि इस गठबंधन के सामने भाजपा अकेली पड़ जाएगी। भाजपा अकेली नहीं पड़ रही है, और ये समझना होगा। हाँ, ये जरूर है कि अरविंद केजरीवाल जरूर जरूर अकेले पड़ जा रहे हैं, कि अरविंद केजरीवाल कहीं ना कहीं। और एक बात और समझ लीजिए, 2019 का चुनाव देखिए और 2020 का चुनाव देखिए, दिल्ली की बात कर रहा हूँ। 2019 के लोकसभा चुनाव में अरविंद केजरीवाल को उतना वोट नहीं मिला था, लेकिन विधानसभा चुनाव में वोट मिला था। तो अरविंद केजरीवाल इस बात को जानते हैं कि अब जनता बहुत कैटेगोरिकली वोट देती है। जब वो विधानसभा का चुनाव होता है तो उनके मुद्दे अलग होते हैं, वोट वो किसी और पार्टी को देते हैं। जब लोकसभा का चुनाव होता है तो उनके मुद्दे अलग होते हैं, वोट वो किसी और पार्टी को देते हैं, वो प्रदेश की पार्टियों को वोट नहीं देते। यही चीज अखिलेश यादव पे लागू होती है। क्यों? अखिलेश जानते हैं कि भले ही हमको बड़ा अच्छा वोट मिल गया विधानसभा चुनाव में, जब लेकिन लोकसभा का चुनाव होगा तो मुद्दे अलग होंगे, और मुद्दे अलग होंगे तो वोट भी जनता अलग तरीके से देगी, और तब स्थिति बदल जाएगी। विधानसभा चुनाव वो अलग बात है, और लोकसभा जो अभी विपक्ष एकजुट हुआ है, बहुत सारे सवाल भी उसके साथ ही चल रहे हैं। अभी आगे देखते हैं बैठकें होंगी। अजय जी, आपका क्या सोचना है? दोनों की बात आपने अभी सुनी, जिस प्रकार से अस्तित्व का सवाल है, ये कांग्रेस की हम बात करें, उसके बाद भाजपा की हम सामने बात करेंगे। भाजपा के साथ भी पक्ष है, वैसे नहीं, ऐसे नहीं अलग थलग तो भाजपा को हम नहीं बोल सकते 2024 के लिए। अभी बैठक की शुरुआत हुई है, क्या आपका सोच रहा है 2024 आते आते क्या आपको लग रहा है? और जो अध्यादेश के खिलाफ जो आम आदमी पार्टी स्टैंड मांग रही है कांग्रेस का, क्या स्टैंड रहेगा उसमें? आदरणीय, सबसे पहले तो मैं आपको प्रणाम करता हूं और पूछना चाहता हूं कि ये जो सज्जन बोल रहे थे वो क्या शुभ नाम है और किस पार्टी से हैं? मैं चेतन त्रिपाठी हूँ, मैं राजनीतिक विश्लेषक हूँ, दिल्ली से हूँ। अच्छा। जी जी। और जो पहले बोल रहे थे उनका नाम क्या था सर? यहाँ गुजरात से ही है, दिलीप गोयल जी, वो भी पॉलिटिकल एक्सपर्ट ही हैं सर जी। आप दोनों को नमस्कार करता हूं मेरे दोस्तों, और निर्माण चैनल के माध्यम से भारत देश की प्रत्येक जनता को प्रणाम करते हुए कहना चाहता हूं कि निर्माण चैनल जिस तरह के मुद्दे उठाता है, विगत कई वर्षों से मैं निर्माण चैनल पर डिबेट करता हूं और कई ऐसे मुद्दे उठाता है जिस मुद्दे को सुनने के लिए भारत देश की जनता व्याकुल है। मित्र त्रिपाठी जी ने जो बात कही है बिल्कुल सच कही है कि अरविंद केजरीवाल जो है अपना सिस्टम अपना रहे हैं और भारतीय जनता पार्टी अलग थलग नहीं होगी। लेकिन मेरा मानना है इस बार भारतीय जनता पार्टी को चिंता ही करने की जरूरत है, सिर्फ चिंता करने की जरूरत है। पटना की मीटिंग ने साबित कर दिया है कि हम भले ही चुनाव एक साथ न लड़ें, अलग अलग लड़ें, भले ही लोकसभा का चुनाव बिल्कुल अलग होता है, लेकिन हम एक से एक बढ़कर भारतीय जनता पार्टी का विरोध करेंगे। और आज जो स्थिति है
वो 2014 से आज की डेट में बिल्कुल डिफरेंट है। 2014 के मोदी जी का कद और आज के मोदी जी के कद में लगभग 40% की कमी आई है। और जिस अरविंद केजरीवाल की बात हमारे मित्र कर रहे थे, इस अरविंद केजरीवाल जी को लाने वाले भारतीय जनता पार्टी के लोग ही हैं। कुछ लोग, सभी लोग जानते हैं अच्छी तरह से कि जो साथ के व्यक्ति होते हैं वो ही धोखा बड़ा जल्दी देते हैं, और अरविंद केजरीवाल ने भारतीय जनता पार्टी के साथ यही किया है। कांग्रेस की सरकार थी, अन्ना हजारे को लाया गया, अरविंद केजरीवाल को प्रोजेक्ट किया गया, और अरविंद केजरीवाल आज पंजाब और दिल्ली की सीट को जीत करके भारतीय जनता पार्टी को ललकारने का काम कर रहे हैं और कांग्रेस से ज्यादा बड़ा पद लेने की कोशिश कर रहे हैं। कांग्रेस एक मजबूत पार्टी थी, बड़ी पार्टी थी, भले ही आज नहीं है, लेकिन यदि कांग्रेस के लोगों ने, कांग्रेस के नेतृत्व ने, कांग्रेस के शीर्ष नेतृत्व ने एक अच्छा काम किया होता, अपने राष्ट्रीय अध्यक्ष को 2014 से पहले बना दिया होता, तो आरपीएन सिंह, जतिन प्रसाद, सिंधिया और एक से एक टॉप लीडर कांग्रेस से नहीं जाते और इनका नाम अच्छा होता। लेकिन आज जो पटना बिहार में जो ये 23 तारीख को मीटिंग हुई, उस मीटिंग से यह साबित होता है कि नीतीश कुमार ने अपने आपके कद को बढ़ाने के लिए इतनी बड़ी सफलता हासिल कर ली है, जिसमें सारे विपक्षी दलों को बुला करके बहुत अच्छी मीटिंग करने का प्रयास किया है। भले ही अरविंद केजरीवाल ने वहां पर अपनी बात को रखने का प्रयास किया, उनकी बात नहीं सुनी गई, और कांग्रेस कभी भी तैयार नहीं होगी कि वो महाराष्ट्र और दिल्ली में चुनाव इनके नहीं लड़ेगी। ऐसा बिल्कुल नहीं होगा, कि कांग्रेस में और आम आदमी पार्टी में बहुत अंतर है। हाँ, एक चीज जरूर कहूंगा कि पटना की मीटिंग में राहुल गांधी का दूल्हा बनना तय करने के लिए ये एक बहुत बड़ी चर्चा जरूर हुई है कि राहुल गांधी को भी अब शादी कर लेनी चाहिए, ऐसा लालू यादव ने कहा। राहुल गांधी ने इस बात पर उनकी हामी भी भरी, लेकिन भारतीय लोकतंत्र में जनमानस और जनता ये अच्छी तरह से जानती है कि आज की डेट में हमें किसके साथ जाना चाहिए और किसके साथ नहीं जाना चाहिए। क्योंकि आज जरूरत है शिक्षा की, आज जरूरत है व्यापार की, आज जरूरत है रोजगार की, आज जरूरत है आर्थिक की। और मैंने देखा भी है कि जनता जिसको चढ़ाती है उसको उतारती भी है। भारतीय जनता पार्टी के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को मैं भारतीय जनता पार्टी का प्रधानमंत्री नहीं बल्कि भारत देश का प्रधानमंत्री कहता हूं। भारत देश के प्रधानमंत्री ने भारतीय जनता पार्टी को बहुत ढोया और बहुत संभाला। अब भारतीय जनता पार्टी के मंत्री, मिनिस्टर, एमपी, एमएलए को सोचना होगा कि मोदी जी के बगैर चुनाव कैसे जीता जा सकता है। जिस समय मीटिंग पटना बिहार में हो रही थी आदरणीय, उस समय जम्मू कश्मीर में अमित शाह जी ने 300 पार का नारा लगाया है। मुझे तो नहीं लगता कि भारतीय जनता पार्टी के एमपी और एमएलए जिस तरह से काम कर रहे हैं, वो अमित शाह के इस वाक्य को 300 पार को पूरा भी कर पाएंगे। और आज जो कांग्रेस अपनी मजबूती समझ रही है कर्नाटक और हिमाचल के चुनाव को जीतकर, आज जो आम आदमी पार्टी का व्यक्ति मजबूत है दिल्ली और पंजाब की वजह से, त्रिपाठी जी ने ठीक कहा कि लोकसभा का चुनाव अलग होता है, विधानसभा का चुनाव अलग होता है। लोकसभा के मुद्दे अलग होते हैं, विधानसभा के मुद्दे अलग होते हैं। और इसी की सच्चाई है कि 2014 से अब तक दिल्ली में अरविंद केजरीवाल को भारतीय जनता पार्टी नहीं हरा पाई, लेकिन लोकसभा सीट में भारतीय जनता पार्टी ने पूरी सीट को हासिल किया है। ये एग्जाम्पल है, त्रिपाठी जी ने ठीक कहा है। लेकिन भारतीय जनता पार्टी को इस बार चिंता होगी और इनको सतर्क रहने की जरूरत है। और यह जो फ्री फंड का 5 किलो का अनाज, कोई बिजली, कोई पानी, कोई ये फ्री फंड किसकी वजह से, मिडिल क्लास के लोगों का क्या हश्र हो रहा है, यह जनता को पता चल चुका है। और मिडिल क्लास लोग
2024 में भी हम वही देखेंगे कि 2024 में अब से जरूर से एक होने की कोशिश की है, पर आगे जाते क्या होगा। तीनों लोगों से एक एक मिनट में एक मैं वाक्य पूछना चाहूँगा। દિલીપ ભાઈ, જે પ્રકારે આપણે વાત કરી અત્યારે આજે કર્ણાટકમાં જે પ્રકારે રિઝલ્ટ આવ્યા છે, હિમાચલની આપણે વાત કરીએ છીએ, અને હમણાં જે ચેતનભાઈએ જણાવ્યું કે કોંગ્રેસ અને જે આમ આદમી પાર્ટી જો આ બંને પણ ભેગા જે છે તો કોંગ્રેસની એક મોટી ભૂલ સાબિત થઈ શકે છે। આપને શું લાગી રહ્યું છે? નાનકડો જવાબ। આમાં કોઈ બે પક્ષના એક થવાની વાત નથી। અત્યારે વાત એ છે કે કટોકટી પછી કોંગ્રેસની સામે જે રીતે બધા પક્ષ ભેગા થયા હતા, કારણ કે આપખુદશાહી પેદા થઈ હતી દેશમાં, એમાંથી લોકશાહી બચાવવાની હતી। એ જ રીતે અત્યારે જે રીતે મુશ્કેલ પરિસ્થિતિ ઊભી થઈ છે ને લોકતાંત્રિક પ્રણાલીઓનું જે રીતે પાલન થવું જોઈએ રીતે પાલન નથી થયું, એ વખતે એકમાત્ર સવાલ ભાજપની સામે મોરચો માંડવાનો છે। એટલે એમાં કોઈ બે પક્ષો વચ્ચે કદાચ થોડી ઘણા મુદ્દા ઉભા થાય તો મને નથી લાગતા એટલા મહત્વના બને। પણ હજી થોડો સમય રાહ જો, 5 રાજ્યોની પણ ચૂંટણી છે, એ દરમિયાન આપને થોડોક અંદાજ આવશે। અને જો આ જ રીતે વળગી રહેવામાં આવશે કે નાની નાની ડિટેલમાં ન પડવું, એકમાત્ર ઉદ્દેશ સાથે મળીને ભારતીય જનતા પક્ષ વિરુદ્ધ લડવું, નહીં તો વિપક્ષનું અસ્તિત્વ બચશે નહીં। આ વાતનો ડર અત્યારે જે છે ડર ટકી રહેશે તો એ જ મને લાગે છે અગત્યનો રહેશે। એમાં આમ આદમી પાર્ટી પછી આમ આદમી પાર્ટીએ ડિસાઇડ, જે રીતે માયાવતીએ ડિસાઇડ કર્યું છે એ રીતે આમ આદમી પાર્ટીએ ડિસાઇડ કરવું પડશે કે એને પોતાના નાના મુદ્દાઓમાં રહેવું છે, કારણ કે એમણે બી સમજવાનું છે કે એમના માટે બી અસ્તિત્વનો સવાલ આવવાનો છે। એ ટકી શકશે ખરું? એમને કોંગ્રેસ સામે લડવાનું કદાચ વધારે આસાન થશે, બીજેપી સામે લડવાનું એમનું ગજું નથી। એટલે બે ચાર પક્ષો વચ્ચેના અંદરો અંદર કરતા સમગ્ર રીતે વિપક્ષ એક રહે છે કે નહીં, એ જ આપણે જોવાનું રહે છે। अजय जी ने भी बात की कि अमित शाह ने 300 के पार का नारा लगा दिया है। आप क्या सोचते हैं, जो विपक्ष अभी एकजुट हो रहे हैं 300 के अंदर रोक पाएंगे, या फिर जो हराने की बात बोल रहे हैं कि हम बीजेपी को हरा देंगे एकजुट हो गए, क्या लग रहा है आपको अभी? देखिए, पहली चीज मैं ये नहीं समझता हूँ कि किसी के भी अस्तित्व का कोई भी सवाल है। देखिए, राजनीति में ये सब चलता रहता है, और भाजपा कांग्रेस मुक्त भारत का नारा बहुत दिन से दे रही है, तो कोई भी अस्तित्व का सवाल नहीं है। और अभी आने वाले जो 3 राज्यों में, पहले हिंदी भाषी 3 राज्यों में चुनाव है, फिर तेलंगाना में चुनाव है, वो और पिक्चर को क्लियर करेगा। दूसरी बात, भाजपा 300 प्लस के जो नारा देती है, देखिए अपन हर पार्टी का नेता अपनी पार्टी के सबसे ज्यादा सीटों का नारा देता है। मुझे ये लगता है कि अगर ये गठबंधन सच में जमीन पर क्रियान्वित होता है, इसके जिस तरीके की बातें ये आज कर रहे हैं, अगर इस तरीके से ये एक ही कैंडिडेट खड़ा करते हैं, एक संयुक्त कैंडिडेट खड़ा करते हैं भाजपा के खिलाफ, तो लड़ाई निर्णायक होगी। और ऐसी स्थिति में ये जरूर है कि भाजपा असहज स्थिति में पहुंच जाएगी। और मैं एक बात और कह रहा हूं कि ये तो आप मान के चलिए कि पिछली बार की लोकसभा सीटों से भाजपा की लोकसभा सीटें कम होंगी, और जिसकी सीटें बढ़ेंगी वो है कांग्रेस पार्टी। और लोगों की बढ़ेंगी या घटेंगी ये देखने वाला विषय है, लेकिन कांग्रेस पार्टी की निश्चित रूप से कुछ सीटें साउथ से बढ़ के आ रही हैं, और उसका मेन कारण है राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा। और जिस तरीके से अब जनता का रुझान उस तरफ, कम से कम साउथ की जनता का, उत्तर भारत की जनता क्या कह रही है वो तो अभी इन 3 राज्यों के चुनाव के बाद समझ में आएगा। लेकिन मुझे ये दिख रहा है कि एक असहज स्थिति में पहुंच जाएगी भाजपा, अगर विपक्ष अपने संयुक्त प्रत्याशी खड़े करते हैं, और ये अच्छी स्थिति रहेगी कांग्रेस के लिए। जी, चुनाव आने वाला है, लोकसभा के पहले भी चुनाव आने वाले हैं, उसमें कैसा रिजल्ट आएगा उससे भी थोड़ा थोड़ा रुख हमें पता चलेगा। और जिस प्रकार से अभी चेतन जी ने भी जो बात बोली आपने भी सुनी, आपको क्या लगता है? भारत देश का लोकतंत्र हमें प्रतिदिन, प्रति घंटा, प्रति मिनट सीखने का और सिखाने का प्रयास करता रहता है। और सीखने सिखाने का प्रयास ये है कि भारत देश का विपक्ष जिसने आज मीटिंग की है, इस विपक्ष को कला का ज्ञान शायद आज नहीं है। अगर ज्ञान होता तो जिस नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री जी ने, आज हमारे देश के आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने 2014 में अपनी सीट को जिस मुद्दे पर प्राप्त किया था, वह मुद्दा पेट्रोल था, वह मुद्दा डीजल था, वह मुद्दा महंगाई था, वह मुद्दा ज्वलंत सिस्टम था, वह भ्रष्टाचार था, वह बलात्कार था, वह हत्या था। विपक्ष ने इस मीटिंग के बाद या विपक्ष ने इस मीटिंग के पहले जनमानस को जीतने के लिए आंदोलन करने की जरूरत थी। और भारत देश ही नहीं, पृथ्वी का हर
व्यक्ति जानता है जहां गुण होता है वहां अवगुण होता है, जहां शुभ होता है वहां लाभ होता है। तो विपक्ष का होना और मजबूत विपक्ष का होना इस भारत देश में बहुत जरूरी है, और विपक्ष ने सही ढंग से काम नहीं किया है। इस बात के अंदेशे से मैं कह सकता हूं कि यदि अब भी समय है विपक्ष के लिए, अगर मौका लगे तो जनता के लिए लड़िए और आवाज उठाइए, ताकि सरकार जागे और समरसता लाए, जनता की बातों को सुने और जनता की जनमानस को सुनते हुए आगे बढ़े। जी जी, तो विपक्ष और जिस प्रकार से जनता का विश्वास जीतना भी बहुत ज़रूरी है। लोकसभा के आते आते किस प्रकार से अभी ये जो बैठक तो शुरू हुई है, पर अंत तक आते आते किस प्रकार से 15 जो पार्टियां साथ में आई है, अंत तक आते आते 15 ही रहती है कि फिर और ज़्यादा जो अनबनाव है वो भी सामने आता है, उसके ऊपर सबकी नज़र रहेगी। अभी तो हमारे साथ जुड़े डॉक्टर अजय और चेतन जी, दोनों का बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। दिलीप भाई તમારો પણ આભાર અમારી સાથે જોડાયા તે बहुत बहुत शुक्रिया। તો દર્શક મિત્રો, 0 આર કાર્યક્રમમાં અત્યારે બસ આટલું જ। આવતીકાલે ફરીથી મળીશું, ત્યાં સુધી રજા આપશો। જોતા રહો નિર્માણ ન્યૂઝ। નમસ્કાર।